वी वांट टू शो दैट अगर मेरा सेट इंटरवल ही होगा तो उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ ही आएगा, ठीक है। द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। तो हम इसको डिफरेंट केसेस में करेंगे। फर्स्ट हमने केस कंसिडर किया था if your eye is closed finite interval. Now here finite means the length is finite, the length of this set is finite. Okay, finite का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि इसमें finite elements हैं. We know that interval is always having infinite elements, right? अगर इंटरवल की लेंथ जरा सी भी बड़ी है तो उसमें इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। अगर ए से ए होता तो उसमें एक ही पॉइंट था, राइट? But whenever the length is strictly greater than 0, that interval is always having infinitely many elements. उसमें बहुत सारे elements होंगे। Now here finite means the length of this interval is finite, क्योंकि close interval आपके पास 0 से infinity भी हो सकता है। जीरो वाली साइड से क्लोज लो, इन्फिनिटी लो ओपन, वो भी एक क्लोज सेट ही है, बट उसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है उसकी लेंथ, राइट? सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल, मींस लेंथ फाइनाइट है, मींस ये दोनों नंबर्स फाइनाइट, ओनली देन हमें लेंथ फाइनाइट मिलेगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? b minus a. This is the length of this closed interval, right? Now what we want to show that the outer measure of this I is same as that b minus a. ये b minus a है, okay? तो इसको शो करने के लिए हमने पहले कंसिडर किया एक इंटरवल a minus epsilon by 2 से b plus epsilon by 2 for some given epsilon। तो ये क्लियरली आपका क्लोज इंटरवल ए बी को कंटेन कर रहा है। Your closed interval AB is completely contained in a minus epsilon by 2 to b plus epsilon by 2. So the length of this interval, or you can say measure of this interval, clearly less होगा length इस interval की। length आ गई आपके पास b minus a plus epsilon, और ये हर एक epsilon के लिए ये चीज आपके पास true होगी for all epsilon. So that's why outer measure of I will be less than equal to b minus a. ये आपके पास फर्स्ट जो है इक्वेशन बन जाएगी, राइट? सिंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ईच एप्सिलॉन, जितना छोटे से छोटा एप्सिलॉन लेना है, बड़े से बड़ा लेना है, ये ऑलवेज इनइक्वालिटी होल्ड होगी। सो इफ योर एप्सिलॉन इज नियर अबाउट 0 तो भी ये होल्ड होगा। सो दैट्स व्हाई आउटर मेजर ऑफ आई विल बी लेस देन इक्वल टू b minus a, and here b minus a is nothing but the length of the interval I, right? So ये चीज होल्ड हो जाएगी। So एक हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई that outer measure is less than equal to b minus a। अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी निकालना है that outer measure of I is greater than equals to b minus a। जैसे ही हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज आ गई, दोनों से हम कह देंगे कि both are same, okay? So एक इनइक्वालिटी आ गई, हम दूसरी इनइक्वालिटी निकालेंगे। For that we will use the definition of outer measure for epsilon given any greater than 0. We will consider a countable collection in of open intervals which covers this closed interval AB. So by definition we know that outer measure of I is the infimum one. अब अगर outer measure आपका infimum length है, infimum है, राइट? तो इस इनफिमम में अगर हम एप्सिलॉन ऐड करेंगे, अब ये इनफिमम मिनिमम नहीं रहा, राइट? तो वी विल यूज दिस थिंग। वी नो दैट दिस इज द इनफिमम वन, राइट? तो अगर मैं एप्सिलॉन इधर ऐड करूं, मेजर ऑफ आई प्लस एप्सिलॉन लूं, तो क्लियरली अब ये इनफिमम नहीं रहा। इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास कलेक्शन आईएन्स की है जिसकी जो लेंथ है वो इससे छोटी हो जाए। अदरवाइज ये सबसे छोटी थी बिकॉज ये इनफिमम थी, अदरवाइज ये सबसे छोटे था, राइट? बिकॉज दिस इज द मिनिमम वन। बट जैसे ही हमने इसमें एप्सिलॉन ऐड किया, अब ये मिनिमम नहीं रहा, तो कोई ना कोई कलेक्शन में से हमें इंटरवल मिलेगा whose length is whose length is small than this outer measure of I plus epsilon. Now we can take epsilon to this side and we get this inequality. Now further, since our interval is closed
since interval is having finite length, it means it is bounded. So closed and bounded implies compactness. So therefore our closed interval AB is compact. So by definition of compactness, every open cover of this set contains finite subcover. तो इस definition को हम use करेंगे. So any collection of open interval which covers this closed interval AB, it contains a finite sub collection which also cover this closed interval AB. अगर मेरा पूरा का पूरा लार्ज जो कलेक्शन है उसकी जो लेंथ है वो क्लियरली बड़ी होगी फाइनाइट कलेक्शन की जो लेंथ आ रही होगी उससे, राइट? द सम ऑफ length of finite sub collection clearly it is not greater than the sum of the length of original collection. Original collection में क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है कि finite members हो, उसमें infinite members भी हो सकते हैं, तो clearly उन वालों की जो length होगी वो बड़ी होगी finite sub collection की जो length आएगी. तो ये लाइन वही है, since the sum of the length of finite sub collection is not greater than the sum of the length of original collection, so it is sufficient to prove the second inequality for finite collection. इसमें हमने arbitrary collection ली है, but ये sufficient है कि आप finite के लिए prove कर दो, finite से भी हमारे पास आंसर आ जाए, right? तो उस finite collection निकालने के लिए सबसे पहले हमने कहा इस closed interval AB में A clearly contained हो रहा है, तो इस A के लिए इस आर्बिट्रेरी IN में से मुझे एक इंटरवल ऐसा मिलना चाहिए जो इस A को कंटेन कर रहा है, वो हमने कह दिया A1, B1 है, राइट? पूरा का पूरा ये यूनियन जो है पूरे इस इंटरवल को कंटेन कर रहा है, इट मींस इसका हर मेंबर किसी ना किसी इंटरवल में आ रहा है. तो पहला मैंने पॉइंट A पिक किया, इस A पॉइंट के लिए इस कलेक्शन में से हमें कोई ना कोई इंटरवल जरूर मिलना चाहिए. So there must exist one interval IN which contains A, let it be A1, B1. तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, इस A1, B1 ओपन इंटरवल में A कंटेन होना चाहिए, तो A इनके बीच में लाई कर जाएगा. अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो B भी आपका इसी के बीच में लाई कर रहा है, मींस B लेस है B1 से, फिर तो आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है. और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कब नहीं होगा, when B1 is less than equal to B. अगर B1 B से छोटा हुआ, राइट, तो इसका मतलब B1 आपका क्लोज इंटरवल AB में लाई कर रहा है. अगर इसमें लाई कर रहा है तो इस कलेक्शन में लाई कर रहा है, तो इस कलेक्शन में से एक इंटरवल हमें और मिलना चाहिए जिसमें B1 लाई करे, राइट? मान लिया कि वो A2 B2 है, और इस तरह से ये प्रोसेस हम आगे करते जाएंगे कंटिन्यू, सच दैट कि पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल AB जो है उसके लिए मुझे फाइनाइट कलेक्शन ना मिल जाए इंटरवल्स की, राइट? तो हमें AI, BI ये ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन मिल गई अप टू K, सच दैट आपका कंप्लीट क्लोज इंटरवल AB जो है वो यूनियन ऑफ दिस फाइनाइट इंटरवल्स में कंटेन्ड हो रहा है. ये पॉसिबल इसलिए है बिकॉज दिस क्लोज इंटरवल इज फाइनाइट, it's closed and bounded, and by definition of compactness हर कलेक्शन जो है वो रिड्यूस होगी फाइनाइट सब कलेक्शन में. तो फाइनाइट इंटरवल हमें मिलेंगे ही मिलेंगे such that your closed interval AB is contained in that union, right? तो हमने मान लिया कि K तक हमारे पास वो है. Now summation of length of INs of arbitrary collection, clearly ये बड़ा होगा फाइनाइट लेंथ की कलेक्शन से, ये हमने वेरी किया 1 से K तक. अब हमने हर एक इंटरवल की लेंथ निकाल ली, ओके, और हमने सिंप्लीफाई करना है. तो हमने क्या किया, B के एज इट इज रखा, रेस्ट 2 हमने क्लब कर दिए, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एज इट इज रखा, बीच वाले पॉइंट्स हमने क्लब किए. नाउ सिंस योर AK जो है दैट इज लेस देन BK -1, ये कलेक्शन हमारे पास कैसी थी, BI -1 इज लेस देन BI एंड AI इज लेस देन BI -1. तो इसको यूज करोगे आप इस लेंथ में. Now since your AK is less than BK -1, so every number in the open bracket that is negative number, okay? ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो जब नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएंगे सारे,
तो इट मीन्स ये जो कंप्लीट लेंथ है इट इज ग्रेटर देन bk माइनस a1. हमने पॉजिटिव नंबर्स इसमें से हटा दिए, तो क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर. नाउ नेक्स्ट देखो bk माइनस a1. अब लास्ट इंटरवल में bk आपका जो है वो यहाँ पे मुझे लगता है मैंने गलत लिखा है. आपका लास्ट इंटरवल देखो क्या होगा, लास्ट में जाकर जो आपका bk होगा वो b जो है वो bk से छोटा होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेस स्टॉप होगा इस वाले पॉइंट में. यस ना लास्ट में आकर आपका b जो है वो bk से छोटा होगा तभी प्रोसेस स्टॉप होगा, बिकॉज तभी आपका क्लोज इंटरवल ab कंटेन्ड हो जाएगा, राइट. तो इसको हमने यूज करना है. नाउ सिंस bk माइनस a1 था आपका लास्ट में, नाउ bk को आप रिप्लेस कर सकते हो, इट इज ग्रेटर देन b, राइट. b इज लेस देन bk, तो यहां से आ गया b इज लेस देन bk. सिमिलरली a1 और a में देखो रिलेशन क्या है, सबसे पहले छोटा है a से. हाँ a1 लेस देन a लेस देन b1. ये आपका पहला इंटरवल था जिसमें a लाई कर रहा, राइट. अब जब जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो माइनस ऑफ a1 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ a. सो माइनस a1 को आप रिप्लेस करोगे, इट इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ a. क्लियर? यस मैम. राइट. तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आयंस ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन जो है इट इज ग्रेटर देन b माइनस a. ये इससे बढ़िया, राइट. सो 2 में आप इस चीज को पुट कर दो. 2 में हमारे पास क्या था, यहाँ पे लेंथ ऑफ आयंस को रिप्लेस कर सकते हो b माइनस a से, तो यहाँ से आपके पास आ गया द मेजर ऑफ i इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b माइनस a माइनस एप्सिलॉन. अगेन सिंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी एप्सिलॉन, राइट. तो यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, इट माइट बी इट इज इक्वल टू आ जाए वेन एवर योर एप्सिलॉन इज नियर अबाउट 0. तो इट माइट बी कि ये दोनों सेम ही आ जाए. ओके, तो आउटर यहाँ पे पॉसिबिलिटी इक्वालिटी की भी हो सकती है, सिंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी एप्सिलॉन. सो द आउटर मेजर ऑफ i आपके पास बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू b माइनस a. Now you can combine first and third and you will get outer measure of i is b minus a. Clear है? So यही हमने प्रूव करना था. The length of closed finite interval is same as that the outer measure of that interval. Clear है?